Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the particle nature of electromagnetic radiation and basically about the dual nature of electromagnetic radiation. Students, earlier to this we have discussed how electromagnetic radiation behave like waves. Okay, and now today we are going to discuss that how the electromagnetic wave shows the particle nature. Here you can see the particle nature. So let us begin. Students, the particle nature of electromagnetic radiation was given by the scientist Planck. So on the basis of his name, it is named as Planck's quantum theory. Students, जो पार्टिकल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर है वो प्लैंक साइंटिस्ट ने दिया था, उनके नेम पे ही इसे हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फेनोमेना था या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमेना था उसको मैक्स प्लैंक ने 1919 में पुट फॉरवर्ड किया एंड आफ्टर हिज नेम इट इज़ नेम्ड एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. ओके, so this theory was further extended by Einstein in 1905. फिर इस थ्योरी को आइंस्टीन ने फर्दर एक्सटेंड किया. ओके, that is not necessary for us. Basically we have to remember only this, that electromagnetic radiations basically shows two. One is the wave character and second is the particle nature. Okay, हमें बस इतना जानना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो वेव नेचर भी, वेव कैरेक्टरिस्टिक भी शो करती हैं और पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट इज दैट द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूअसली but discontinuously in the form of small discrete packets of energy called quantum. Okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बस इतना समझना है कि जो रेडिएंट एनर्जी थी जो एमिट हो रही थी या एब्जॉर्ब हो रही थी वो कंटिन्यूसली, हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूसली रेडिएट और एब्जॉर्ब होती रहती है, लेकिन प्लैंक्स ने ये बताया कि वो कंटिन्यूस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूस है और वो भी किस फॉर्म में है, स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स में है. ठीक है, जिसको कि हम क्वांटम कहते हैं. और इसी को हम अगर लाइट के केस में स्टडी कर रहे हैं तो इसे हम क्या कह देंगे, फोटोन. ओके, सो स्टूडेंट्स, सेकेंड इज द थिंग दैट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन is directly proportional to the frequency of the radiation. तो जो एनर्जी है फोटोन की, हर एक फोटोन की जो भी एनर्जी है, ठीक है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन. कि रेडिएशन की हमारी क्या फ्रिक्वेंसी है उसके बेस पे ही जो एनर्जी है फोटोन की वो डिपेंड करती है. ओके, एंड स्टूडेंट्स, टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्लैंक्स गिवन a constant that is termed as proportionality constant. As it is given by Planck, it is Planck's constant. So this h, students, this h is basically what it is, Planck's constant. Okay, so in numerical parts it will be helpful for you. जब भी आपको numerical solve करने हैं तो ये आपके लिए helpful होगा कि what is the value of Planck's number. Now students, as we have seen the relationship that energy is directly proportional to, that energy of each photon is directly proportional to the frequency, and we have given the constant, that is proportionality constant, that is called as Planck's constant, and its value is basically 6.626 into 10 to the power minus 27 erg second. Okay, or we can also write its value as 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. Okay, so students, this is about how we named it as quantum and how it is derived, that is each photon is directly proportional to the frequency. So from here we have given we have obtained the expression that is E is equal to h nu. Now coming to the next, that is, if we are talking about the total amount of energy emitted or absorbed by a body will be some whole number quantum. Okay, मतलब अगर जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करते हैं कि जो एमिट हो रही है या ऑब्जर्व हो रही है
उसको हम किस में लेंगे, हम लोग उसको होल नंबर क्वांटा मानेंगे। सो फॉर दिस एक्सप्रेशन इज गिवन एज, इसके लिए हमने एक्सप्रेशन ऐसे दिया, E इज इक्वल टू NH न्यू। ओके, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे ये n क्या है, एनी इंटीजर। ओके, 1 2 3 4, इट कैन बी एनी इंटीजर। सो दिस इज़ अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। सो स्टूडेंट्स, कभी भी जब आप डुअल नेचर की बात करते हैं EM रेडिएशन की, सो इन दिस practically first Planck's given this theory that is called as the Planck's quantum theory, but after that in 1905 Einstein worked on this theory। आइंस्टीन ने इन थ्योरीज पे काम किया और उन्होंने क्या दिया, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन्होंने प्रॉपरली बताया कि जो EM रेडिएशंस हैं उनकी डुअल नेचर हैं। एंड व्हाट आर दीज डुअल नेचर? बेसिकली स्टूडेंट्स, बेसिकली some properties of light, or in general you can say any radiation like interference and diffraction etc., can be explained only if we consider light to have wave nature। मतलब जो रेडिएशंस हैं या जनरल हम अगर लाइट की बात करते हैं, लाइट की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो वो जो परफॉर्म करती हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमिनास, तो ये शो करता है कि जो लाइट है वो क्या है, वेव नेचर शो कर रही है। ओके, and now coming to the second students, there are some other properties of light or any other radiation such as black body radiation and photoelectric effect that can be explained if we consider light to have particle nature। अब students, कुछ और properties या phenomena है लाइट की या रेडिएशंस की, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये हम तब एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हेन वी कंसिडर लाइट एज पार्टिकल नेचर। ओके, जब हम ये कह सकें कि लाइट क्या है, वो एक पार्टिकल नेचर शो कर रही है। ओके, सो द लाइट इज सेड टू हैव अ डुअल नेचर। एंड व्हाट आर दीज डुअल नेचर? द वेरी फर्स्ट, इट बिहेव एज वेव, एंड द वेरी सेकेंड, it behave as a stream of particles। Okay, so students, this is what the dual nature of electromagnetic radiation, and what you have to remember is that this idea was put forward by Einstein in 1905। ये आइडिया जो मिला था वो आइंस्टीन ने दिया था 1905 में। ओके, so this is all about today's lecture। Students, make note of whatever we taught you and also try to practice more and more questions। Thank you class।